So now we are resuming with the electrics chapter. See, the entire electrics chapter जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पूरा smoke configuration खत्म कर लिया. What I want you guys to do right now is I want you guys to open your FCOM again. Okay, सर्वेश, इलेक्ट्रिक्स वाला जो 8 चैप्टर है FCOM में, चैप्टर नंबर कौन सा है? कराने मैंने इलेक्ट्रिक्स न्यूमैटिक्स कौन सा है? न्यूमैटिक्स 28. अच्छा, फ्यूल कौन सा है? इस चैप्टर नंबर से याद नहीं होगा. पढ़ लेना, ठीक है? It's important that you remember. Open your FCOMs. So what we are left with is controls and indicators, correct? Before we complete the entire controls and indicators, I want to go ahead and teach you about this distribution table. Uh, this is in a continuation with what I was teaching in the last class. And last class में मैंने आप लोगों को पूरी उसकी सारे abnormals करवा दिए थे, correct? अब इन सारे abnormals में see what changes happen ये हम लोग सीखने वाले हैं. So ये जो पूरी चार्ट है, this is basically a reiteration of all the things that we have studied so far. ठीक है? How do you read this chart? How do you read this table? In the topmost line, you have all the buses, all the bus bars. You have AC bus 1, AC bus 2, AC essential bus, AC essential shed bus और AC shed essential bus. यहाँ पे ना ये बंदे ने ये जो वर्ड लिखा है ना AC shed essential, ये गलत लिखा है. AC essential shed bus. ये मैं उस दिन भी मैंने FCOM में गलत चीज़ पॉइंट आउट की थी. That is why people usually get confused in the names of these buses. And AC static inverter bus. These are the 5 buses. I want you to open your diagram, this particular diagram, and I want you to locate all of these buses. Okay. What this thing is actually telling you is, in the normal configuration, ये बस आपको ये बता रहा है कि AC bus 1 का सप्लाई कहाँ से आ रहा है, Gen 1 से आ रहा है. AC bus 2 का सप्लाई कहाँ से आ रहा है, Gen 2 से आ रहा है. AC essential bus का कहाँ से आ रहा है, Gen 1 से आ रहा है. लेकिन Gen 1 किसको दे रहा है, AC bus 1 से ही दे रहा है, वहीं से आएगा. Is the AC static inverter bus powered? No. Look at this chart and tell me, when is the AC static inverter bus powered? As I have told you in the last class, AC static inverter bus is only powered EMR configuration before emergent availability, which is basically flight with batteries only. Only when you are on batteries, the static inverter bus is powered. Look at this ground diagram, on ground only. Again, the static inverter bus is powered. Easy, right? Next, as I told you about last class, AC essential shed bus. AC essential shed bus. तो ये किससे पावर्ड है, क्या ये हमेशा पावर्ड रहेगा? यस, ये हमेशा पावर्ड रहेगा. ये केवल और केवल तब शेड किया जाता है जब आपकी बैटरीज नहीं, बैटरीज पे चल रहा हो. अगेन, फ्लाइट विद बैटरीज ओनली. इन दैट केस, एज यू कैन सी इन द ईमर कॉन्फ़िगरेशन, ये गया इमरजेंट. वापस जब एक बार रन होना शुरू हो गया, तब ये वापस लाइन पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं. सो दिस एसेंशियल शेड बसेस ओनली गेट शेड ऑफ when you are on batteries only. Lastly, यहाँ पर हमारे पास TR1 TR2 है. इट्स फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ऑफ कोर्स लेफ्ट वाला TR को लेफ्ट वाले AC बस 1 से ही मिलेगा, राइट वाले से तो मिल नहीं सकता, राइट? हावेवर, अगर आप यहाँ पर देखो, TR1 फॉल्ट में बता दिया गया कि भाई इसको कहाँ से मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल Gen 1 फॉल्ट अगर इन्होंने दिया हो, नहीं दिया, वन जनरेटर फॉल्ट. So let's say the left generator has failed. Okay, but what generators are available? That availed generator can be X. It can be either generator 1, it can be generator 2, or it can also be the APU generator. So like we studied in the last day, that if one of these generators is gone, galley load shedding will happen
and all the entire AC system and the DC system will, all the load will be taken by the remaining one generator. ठीक है. अब जब आप इसको करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसपोज करके डायरेक्ट करंट में लेके जाते हो, तो आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं. सो व्हाट यू बेसिकली टेलिंग हियर इज डीसी बस 1, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये TR1 के थ्रू आया और TR1 को सप्लाई किसके थ्रू मिल रही है, Gen 1 के थ्रू मिल रही है. And that is how you read this entire table. Okay, so are the TRs always working? Yes, the TRs are always working, and of course unless they are not powered. A few things, a few points that you need to note down कि हर बार ये जो DC बैट बस और DC इसेंशियल बस, ये दोनों को आपको नोट डाउन करना है, और DC इसेंशियल शेड बस. ठीक है. हॉट बस, यहाँ ये तीन को तो हम लोग पढ़ेंगे अभी. बिफोर आई टीच यू दिस, हॉट बस के बारे में कुछ बात किया जाए. हॉट बस यार कुछ भी देख लो यार, वो तो हमेशा पावर्ड ही है, कुछ भी करो ना करो. राइट. फ्यू पॉइंट्स टू नोट डाउन इज DC बैट बस एंड DC इसेंशियल बस. कौन से दो? DC बैट बस एंड DC इसेंशियल बस. सो एंड DC इसेंशियल शेड बस. तो DC बैट बस हमेशा पावर्ड होता है? जी हाँ, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा पावर्ड होता है. कुछ केसेस में ये पावर नहीं देगा, विच इज अगेन फ्लाइट विद बैटरीज ओनली, में पावर नहीं देगा. अगर आप ग्राउंड पे 100 नॉट से ज़्यादा की स्पीड पे, तो भी तुम्हारा रैड चल रहा है, बैटरी इस पे हो ही नहीं, तुम रैड चल रहा है ना. हाँ, बट अगर तुम ग्राउंड पे 100 नॉट से कम की स्पीड पे आ गए, तो रैड स्टॉल हो जाएगा, यू विल बी ऑन ग्राउंड विद बैटरीज ओनली. तो 100 नॉट से नीचे मे बी 120 नॉट पे स्टॉल किया तुम्हारा रैड, बट DC bat bus will only come alive when the speed is below 100 knots. Okay, why does it come on? So that you can start your APU. APU start होने के लिए तुम्हारा DC बैट बस कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, एंड DC essential शेड बस भी कनेक्टेड होना ज़रूरी है, एंड स्टैटिक इन्वर्टर बस भी कनेक्टेड होना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इनसे तुम्हारे APU के फ्यूल पंप्स चलते हैं. ठीक है. Any doubts in the distribution table that you have? Whenever in doubt, you can always come back, refer to this table, always. So now look at these portions. एग्जाम में ना क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. जब आप ऑन ग्राउंड हो, स्पीड जब आपकी 100 नॉट है वर्सेस स्पीड जब आपकी 100 नॉट से कम है, या फिर रैड स्टॉल हो चुका है, विच एवर कम्स फर्स्ट. यूजुअली उन लोगों ने डाला ही ऐसे बिकॉज या तो रैड स्टॉल 120 इसके आसपास हो जाएगा, 20 नॉट गिराने में कितना ही टाइम. जैसे ही तुम्हारी स्पीड 100 से कम हो गई, यहाँ तुम्हारा रैड स्टॉल हो गया, ड्रास्टिक चेंजेस टेक प्लेस. ड्रास्टिक चेंजेस टेक drastic changes take place. Emergen goes completely out of the radar. But obvious. On battery, what are the only few things which are supplied? DC essential bus, AC essential bus. लेफ्ट वाला साइड AC essential बस को देता है, राइट वाला साइड DC essential को देता है. यही हम लोगों ने सीखा. बैटरी 1 AC essential, बैटरी 2 DC essential बस. ओके. So the AC essential bus is provided by the static inverter via the static inverter. मतलब पहले तो बैटरी 1 से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, स्टैटिक इन्वर्टर में जा रही है, वहाँ से आ रही है AC essential शेड बस. जब आपको ये मैं अब चीज़ें बता रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, यू आर सपोज टू हैव दिस डायग्राम ओपन विथ यू, and you're supposed to refer to this diagram, only then you will be able to understand this. Okay. ठीक है. अब AC स्टैटिक इन्वर्टर बस स्टैटिक इन्वर्टर के थ्रू आ रहा है, वेरी गुड. DC बैट बस कनेक्टेड है, हाँ. 100 नॉट के ऊपर DC बैट बस नहीं है, 100 नॉट के नीचे DC बैट बस है. रीजन क्या है? APU स्टार्ट. DC इसेंशियल बस
जी हाँ, बैटरी 2 से सप्लाइड है क्योंकि डीसी वाला राइट साइड में। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करो, ये जो डीसी इसेंशियल शेड बसेस हैं, ये दोनों शेड ऑफ हो जाते हैं बैटरीज ओनली पे, जैसे मैंने आपको पहले से कहा, ये दोनों शेड ऑफ हो जाते हैं। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द स्पीड मोर देन 100 नॉट्स एंड स्पीड लेस देन 100 नॉट्स और एट स्टॉप। नेक्स्ट इज 50 के ऊपर और 50 के नीचे डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसका डिफरेंस है एसी इसेंशियल बस। AC essential bus shut off कर दी जाती है, which leads to the loss of all main DUs inside the aircraft. It will become a cold and dark aircraft. Okay? Any doubts? भैया आपने बोला कि वो जो रेड स्टॉल के बाद भी पावर रहता है तो स्टार्ट द एपीयू, Batteries तो बैटरीज का, हाँ, तो एपीयू अगर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद फिर से पावर लॉस हो जाता है, मतलब 50 नॉट्स के नीचे फिर तो एपीयू अगर स्टार्ट हो गया तो फिर पावर जनरेशन फिर से चालू हो गया ना। यार देखो, जब आपका जनरेटर ऑफ होता है ना, तो हम लोग वहाँ पे क्या, मैं सो रिमेम्बर यू हैड आस्क्ड मी दिस डाउट और समवन इन द क्लास हैड आस्क्ड मी दिस डाउट लास्ट डे। सो मैंने आपको जनरेटर 1 फेलियर का पूरा प्रोसीजर खोल के दिखाया था। उसमें क्या लिखा था, एपीयू स्टार्ट कंसिडर, ये लिखा था ना, वी रेड दैट प्रोसीजर. So if the procedure is asking you to consider an APU start, you would have already started the APU. But obvious. However, if you haven't done it already, do it now. Yes. 50 नॉट से नीचे बैटरीज भी बंद हो जाती है ना? नहीं, बैटरीज कभी बंद नहीं होती। नहीं मतलब जैसे इफ बोथ इंजन फेल्स एंड वी लैंड ऑन रैट, तो जब वो एंड में आते हैं तो वो सब डार्क हो जाता है। हाँ, तो AC इसेंशियल यही तो सिखा है यार। ये जो AC इसेंशियल बस है 15 नॉट्स के नीचे, ये वाली बस, ये वाली AC इसेंशियल बस, लोकेट दैट AC इसेंशियल बस, ओके ओके ओके। वो बस चली जाती है। वो कोल्ड और डार्क इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो डिस्प्लेज हैं वो अल्टरनेटिंग करंट से पावर लेते हैं, बट आपका स्टैंड बाय वाला तो नहीं बंद हो रहा है। One second, someone stand it up. So, do you guys have any doubts in the distribution table? किसी को भी कोई भी डाउट है? तरुण, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस, निखिल? सर अगर एसी बस 1 और 2 फेल हो गई है तो फिर यस. भी तो एपीयू जनरेट नहीं कर पाएगा कुछ। Come again, please. अगर एसी बस 1 और 2 फेल हो गई है और हम एपीयू स्टार्ट करते हैं फिर भी तो वो कुछ जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि 1 और 2 बसेस फेल हो गई, वो दूसरे सिस्टम के लिए हम एपीयू चालू कर रहे थे। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? बस लेट्स से जैसे हमारा कि वो AC सब। बस 1 फेल हो गया, आपका AC बस 2 फेल हो गया. यस सर। What will happen? The aircraft will be cold and dark for 12 seconds, 8 to 12 seconds. यस सर। Correct? In that यस time, सर। the rat will come on. For those 8 to 12 seconds, your battery is up supplying the source of electricity. Correct? यस सर। अब बताओ डाउट क्या है? तब बट एपीयू जनरेटर कैसे मतलब सप्लाई कर पाएगा क्योंकि एसी बस 1 और 2 तो दोनों फेल हो गए हैं। बैटरी से ना, APU. अच्छा, so Nikhil's question is how will the APU turn on if I do not have alternating current? Nikhil, the answer to your question lies in your SOP. When you enter a cold and dark cockpit, what is your preliminary cockpit preparation flows? भाई हो गया तो एपीयू अगर पावर जनरेट भी कर रहा होगा तो वो कैसे सप्लाई करेगा? बैटरी से, बैटरी देगा DC बैट बस को, DC बैट बस देगा APU स्टार्टर को. नहीं नहीं, एपीयू जो पावर जनरेट करेगा एपीयू स्टार्ट होने के बाद, जैसे यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना जिसमें Gen 1 Gen 2 एपीयू और हमारा एक्सटर्नल पावर कनेक्शन है जो हमारे सबसे लोअर पोर्शन में है, और वो नहीं एसी सप्लाई बस कर हो ना, एसी पाएगा. बस थ्रू यू के आर थ्रू जाता है। एब्सोल्युटली राइट, नहीं सप्लाई कर पाएगा. Your question is absolutely right. If both my AC buses have failed, then it won't happen. But I have a question. Is an ECAM still triggered for a partial failure of an AC bus?
Is an ECAM still triggered for a partial failure of an AC bus? Listen to this particular line, okay? In AC bus 1 fault, अगर एक partial उसका अगर आप FCOM procedure देखोगे, तो even if there is a partial failure, still the ECAM is generated. ठीक है? Then the ECAM will ask you to do all of that bullshit, you know. Turn the rat on. Yes. तो इन सच सिनेरियो इमरजेंसी पावर जनरेट होगा जितना होगा रैट जब तक चलेगा तब तक. Absolutely. Okay. So what we are going to do now is, now what is the condition for the auto deployment of the ram air turbine, Suval? In case of total electrical failure. What do you mean? Tell me exactly what do you mean. When we are having Gen 1 and Gen 2 failures, there is Not no necessary. power supply to the aircraft or the electrical systems to work. At any given point of time where the AC bus 1 and the AC bus 2 are not supplied, अगर ये दोनों buses नहीं supplied है, वो generator से data नहीं लेता, वो और कहीं से डेटा नहीं लेता, वो सीधा देखता है कि मेरा AC बस 1 और AC बस 2 दोनों में से कोई भी एक चल रहा है तो ठीक है. ओके ओके. So, and secondly, the next condition is the ADIRU should report a speed of more than 100 knots. Now my question is, which ADIRU? Which ADIRU? ADIRU 1. Okay. Why ADIRU 1? Because ADIRU 1 will be the only ADIRU available in EMERELEC config. Okay. Then we have the manual deployment of RAT. When you do a manual deployment of RAT, again it's a emergency action, and we are now here referring to the manual deployment of RAT along with the emergen. I would like to reiterate here that there are two buttons inside the cockpit to deploy the RAT. One is on the EMER-ELEC panel to provide emergency electricity. The next one is on the hydraulic panel, which only supplies hydraulic power. Okay. The manual deployment of the RAT is irreversible. It is denoted by this red guarded switch. Okay. Can you name me two more buttons with the red guarded switch? Oxygen mask. Which one? Crew oxygen mask. No. वो Passenger. passenger oxygen mask. And one more. बहुत सारे हैं. ELT, fire, rat on, है ना? अच्छा एक बात बताओ, इमरजेंसी इवैक्यूएशन रेड गार्डेड स्विच है कि नहीं? ब्लैक गार्डेड स्विच है, ठीक है. What does a red guarded switch and a black guarded switch have in difference? One is irreversible, one is reversible. ठीक है. Now ये जो manual deployment है RAT का, this is controlled by two valves and two switches. Explain करते हैं इसको. ठीक है. अगर आप कभी भी ये RAT man on का बटन दबाओगे, देखो याद रखना, कभी भी कोई भी बटन के बाजू में ऑटो लिखा है मतलब उसका एक ऑटोमेटिक फंक्शन. इस बटन का ऑटोमेटिक फंक्शन क्या है कि ये ऑटो डिप्लॉय हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है. बट यू कैन ऑलवेज मैन्युअली डिप्लॉय इट एज वेल by lifting this card up. If you deploy the RAT with the help of the EMER-ELEC panel, the RAT and the emergen, which is the ram air turbine and the emergency generator, both of them will come on. बट अगर आप सिर्फ हाइड्रोलिक वाले से दबाओगे तो सिर्फ रैम एयर टर्बाइन आएगी जो हाइड्रोलिक को चलाएगी. कौन से हाइड्रोलिक को चलाएगी निखिल? लो हाइड्रोलिक. करेक्ट, ब्यूटीफुल.
Now let's have a look at this diagram. They have taken a snapshot of the blue hydraulic or the hydraulic panel, and they have taken a snapshot of the emerelect panel. Now we are going to see how do the signals, different signals from these different panels actually have an effect on the entire actuation system of the ram air turbine. As you can see over here, this is the ram air turbine. ओके, हवा इसके ऊपर आएगी, रैम एयर टर्बाइन चप्पू है, घूमेगा। ये चप्पू जब घूमेगा तो रैम एयर टर्बाइन का पूरा शाफ्ट घूमेगा। रैम एयर टर्बाइन का शाफ्ट घूमा तो वो ये ब्लू हाइड्रोलिक को प्रेशराइज करेगा, राइट। ये ब्लू हाइड्रोलिक का प्रेशर ब्लू हाइड्रोलिक के सारे जगहों पे जाएगा, करेक्ट, परफेक्ट। नॉट ओनली दिस, ये ब्लू हाइड्रोलिक एक हाइड्रोलिक मोटर को ड्राइव करेगा जो एक इमर्जन को ड्राइव करेगा। जैसे आपके इंजन में देयर इज समथिंग नोन एज एन आईडीजी। वो क्या करता है, एक जनरेटर को एक कांस्टेंट आरपीएम पे मेंटेन करके रखता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे मेंटेन करके रखता है, करेक्ट। दैट इज द फंक्शन ऑफ द GCU एंड द कांस्टेंट स्पीड ड्राइव यूनिट। उसका काम है कि एक जनरेटर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे रोटेट हो। सिमिलरली ब्लू हाइड्रोलिक अगर मैं एक हाइड्रोलिक मोटर के थ्रू भेजूंगा तो ये मेक श्योर करेगा कि यार मेरा जो इमर्जन है ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे रोटेट होगा। ओके, नॉट ओनली दिस, वी आल्सो हैव एन इलेक्ट्रिक पंप। द इलेक्ट्रिक पंप कैन आल्सो सप्लाई द ब्लू हाइड्रोलिक सिस्टम, एज यू ऑल नो। ओके, कोई डाउट नहीं ना? चलो गुड। ये हो गया स्ट्रक्चर, ये है रैम एयर टर्बाइन और ये है हाइड्रोलिक्स के सोर्सेस का पार्ट। ये डॉटेड सर्कल, डॉटेड लाइन क्या है? दिस इज द कांस्टेंट स्पीड मोटर स्लैश जनरेटर, जैसे मैंने आपको बताया था, CSDU, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव यूनिट। सो इट्स अ कांस्टेंट स्पीड मोटर which is connected or coupled to a generator. Easy. Now let's have a look at these signals. You have a couple of signals here. You have number 1 over here, you have number 2s over here, you have number 3 here. पहले number 1 से शुरू करेंगे। Number 1 is this emergent test. You need to understand, RAT का डिप्लॉय होना जरूरी नहीं है इमरजेंसी जनरेटर को टेस्ट करने के लिए। रैट क्या है? रैट तो एक छोटा सा पंखा है, उसके ऊपर ऐसे ये बना हुआ है, ये जो शाफ्ट को घुमाएगा ये एक पंप है, इसमें से निकल रहा है हाइड्रोलिक फ्लूइड। ये हाइड्रोलिक फ्लूइड एक जनरेटर को चला रहा है, ठीक है। अब वो हाइड्रोलिक फ्लूइड चला, रैट दे, ब्लू इलेक्ट्रिक पंप दे, कोई भी दे, मुझे क्या, राइट। सो अगर मैंने ये टेस्ट बटन दबाया तो क्या होगा, वो क्या टेस्ट कर रहा है, वो इमरजेंसी जनरेटर को टेस्ट कर रहा है। कैसे? ये देखो, ये टेस्ट वाला सिग्नल है, ये आपने दबाया, सो सिग्नल 1 ट्रू विल गो ओवर हियर, द सिग्नल विल पास थ्रू द GCU, generator control unit, which is the GCU of the ram air turbine and the emer generator. वो क्या करेगा, वो इस वाल्व को बंद कर देगा, इसको एनर्जाइज कर देगा, और ये पर्टिकुलर जो वाल्व है ना, इसको खोल देगा। So when you press the emergen test push button, what you're basically doing is you are telling कि भाई ब्लू हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पंप से आओ और मेरे इसका हाइड्रोलिक मोटर और इमर जनरेटर को घुमाओ, इससे होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, एंड ये मैं इसको ये कॉन्टैक्टर के थ्रू डाल के AC essential and AC essential TR में डाल दूंगा। That's number 1. Next we have number 2, which is the man on. Man on मैन्युअली रैट को नीचे निकालता है, ठीक है। तो नंबर 1 यह आएगा, एक सोलेनॉइड, दूसरा सोलेनॉइड। I told you a rat is deployed with the help of 2 solenoids, not 1. ओके, जो पहला वाला सोलेनॉइड है वो आ रहा है रैट मैन ऑन से, सॉरी, चलो आते वो 2 सोलेनॉइड्स पे आते, ठीक है। ये रैट मैन ऑन समझ गए।
एक सोलेनोइड आ रहा है रैट मैनॉन से, विच इज दिस हाइड्रोलिक पैनल से. एक आ रहा है रैट एंड इमर्जन, इमर इलेक्ट का जो पावर है ना उसका बटन. तो दो सोलेनोइड है, एक हाइड्रोलिक पैनल के लिए, एक ये वाले पैनल के लिए. ठीक है. और जो ऑटोमेटिक फंक्शन है वो यहाँ पे. एसी बस नहीं चल रहा है, एसी बस नहीं चल रहा है. ADRU 1 is more than 100. Any doubts in the entire architecture? नहीं. खोल के इसको FCOM से भी पढ़ लो. इसको खोल के FCOM से भी पढ़ लो. Once you are done, we can proceed to controls and indicators. Okay. Okay. So now you guys are going to tell me something. आप लोग मेरे को ये बताओगे कि यार इन सबका फॉल्ट लाइन आता कब. ठीक है. That is what you guys have to tell. Open your FCOM. ये जो जनरेटर है इसकी फॉल्ट लाइन कब. Can you hear me? Okay, Subal, tell me, when does the fault light come on? For Gen 1 and 2, in case the line connectors are not in the correct position, and in case of the Gen 1 or 2 is tripped, GCU is tripped basically. GCU tripped and GLC disagree. The line, yeah, क्या? a line contactor disagree. हाँ, GLC stands for generator line contactor. It's not contractor, it's contactor. Okay. Contactor. External power का तो आपको पता है. चलो APU gen का बता दो. I think it's going to be the same. है ना? So be it any of these three fault lights, it's all going to be the same. अब IDG का बताओ. फटाफट IDG का बताओ. IDG oil outlet overheat and IDG oil pressure is low. बेसिकली IDG गर्म होने पे. ठीक है. IDG का ऑयल ठंडा कैसे होता है. IDG का ऑयल ठंडा कैसे होता है. With the help of the fuel actually, which passes through Absolutely the correct. engine. It does happen with the help of the fuel. Now why is this a red guarded switch? Because if we turn off the IDG, we can restart it once until and unless we What land. happens when Because you turn off the IDG? ये बटन का फंक्शन बताओ. इस बटन को दबाओगे तो क्या होगा. Read it and tell me. pressing this switch disconnects the IDG from its drive shaft. Exactly. One second. ठीक है. Now let's say if the IDG is disconnected, can it be reconnected in flight? No. Can it be reconnected on ground? Yes, it can be reconnected on ground. You should not press this button for how much time?
Not longer than 3 seconds. Why? Why? पता करो, उसमें लिखा है. It can damage the So shaft it can also. हाँ निखिल बताइए. it can damage the mechanism. What mechanism? IDG को डिस्कनेक्ट, Disconnection. IDG को डैमेज करेगा. IDG का क्या क्या डिस्कनेक्ट, क्या डैमेज करेगा? So उसका disconnection mechanism को. एग्जैक्टली. सो वो सोलेनॉइड के बेसिस पे काम करता है, ठीक है. तो वो अगर तुम उसको दबा के रखोगे ना, तो वो बहुत लंबा करंट, बहुत हाई लेवल का करंट उसके डिस्कनेक्शन वाले सोलेनॉइड में डालेगा और वो जल जाएगा. इसीलिए. ठीक है. कोई डाउट? कोई डाउट? सो वी आर डन विथ 4 ऑफ दीज बटन्स. 1 2 3 4. ये ऑफ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका जनरेटर लाइन कॉन्टैक्टर है वो खोल दिया गया, और जो जनरेटर की जो फील्ड कॉइल्स हैं उसको डी एनर्जाइज कर दिया गया. फॉर दोज हु आर नॉट देयर इन द फर्स्ट क्लास, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू अ लिटिल बिट. ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा साउथ पोल है, ये तुम्हारा बीच में कॉइल है. इसको कहते हैं हम लोग आर्मेचर. या यहाँ पे ना नॉर्थ पोल के ऊपर और जो साउथ पोल है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स रहती हैं. ठीक है. ये जीएलसी कंट्रोल करता है, which basically then controls कि मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है. क्योंकि अगर मैग्नेट मैंने वीक रखा तो इसके अंदर करंट ज़्यादा जनरेट नहीं होगा. तो यहाँ पे हम लोग इस मैग्नेट की इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देते हैं. ओके. मैग्नेट की मैग्नेटिज्म को बढ़ा देते हैं. कोई डाउट? ओके. नाउ वी हैव 3 buttons more. We have this, we have this, we have this. अब मेरे को आप बताइए, बस टाई ब्रेकर में यहाँ पे एक ऑटोमेटिक लॉजिक लिखा हुआ है. ये ऑटोमेटिक लॉजिक पढ़ो और मेरे को समझाओ क्या. AC bus 1 and 2. ओके. So basically when करता क्या है ये? हमारे पास ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये सोर्स है. अब इनके बीच में जो हम लोगों ने ऊपर डायग्राम देखा था, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है. ठीक है, बताओ यार. basically if Gen 1 is supplying to AC bus 1 and if the Gen 2 is closed, then the bus tie will be connected. That bus tie 2 will be connected and bus tie 1 will be not connected because the APU will be supplying to Gen 2, AC bus 2. So when there is a generator off, APU is supplying that specific AC bus through the bus tie contactor. सो बेसिकली द आइडिया इज, यू राइट, बेसिकली द आइडिया इज कि भाई देखो, जब ये दोनों चल रहे हैं, 2 जनरेटर्स चल रहे हैं, दोनों बस टाई कॉन्टैक्टर्स खुल जाएंगे. ठीक है. जब बीच का कोई भी एक चल रहा है तो ये दोनों बस टाई कॉन्टैक्टर्स बंद हो जाएंगे, सो दैट द मिडिल ones can supply electricity like this. हाँ. और जब बीच का एक चल रहा है और साइड का एक चल रहा है, then they will go like this. तब एक बस टाई कॉन्टैक्टर बंद होगा, दूसरा वाला खुल जाएगा. Okay. Now you guys are going to tell me, Kunal, you will tell me when does this fault light turn on, the battery fault light. ये कब आती है? Yes, Kunal, tell me. भाई ये फॉल्ट आती है जब चार्जिंग करंट एक्सीड या मतलब मिनिमम? आउटसाइड द लिमिट्स होती है. चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करंट? चार्जिंग. चार्जिंग करंट इज कितना?
आउटसाइड द लिमिट, कितनी लिमिट है? सो द आइडिया बिहाइंड 26.5 26 नहीं, वो वोल्ट्स है भाई, वो वोल्ट्स है, ठीक है। सो इसकी फॉल्ट लाइट तब आती है जब व्हेन यू हैव अ चार्जिंग करेक्ट, बिकॉज the idea here is if the battery is charging at a very very high rate, what do you expect? Have you heard about something known as a thermal runaway? How many of you have heard about a thermal runaway? No one? Tech Gen नहीं पढ़ा किसी ने भी? Thermal runaway is a phenomena that happens in NiCad batteries. Okay, why does this happen? With increase in heat, these batteries have a negative coefficient of resistance. Because they have a negative coefficient of resistance, as the heat increases, the current increases, the heat increases, the resistance inside the battery will fall down. Because the resistance inside the battery will fall down, more current will flow through the battery to charge the battery. ये कब होता है? जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है। ओके, सो बेसिकली ऐसे केस में उसका ऑटोमेटिक फंक्शन क्या करेगा, वो बैटरी चार्ज कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्टैक्टर है उसको ओपन कर देगा। ओके, इजी। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है, लेट्स से यू हैव अ कोल्ड एंड डार्क कॉकपिट, ये जो दो लाइट्स हैं ऑफ की, क्या ये दोनों लाइट्स आपको देखेंगी? नहीं। लेकिन अगर आपने दोनों बैटरीज को ऑन कर दिया तो ये दोनों ऑफ लाइट्स देखेंगी? नहीं। तो ये ऑफ लाइट है क्यों? जब तुम किसी एक बैटरी को बंद करोगे, दूसरी बैटरी तो पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर कर रहा है ना। सो लेट्स से ओनली टर्न दिस बैटरी ऑफ, तो किसका ऑफ लाइट जलेगा, इसका या इसका? दूसरा item। नहीं, इसका जलेगा। तुमने इसको ऑफ किया ना, तो ये ऑफ हुआ तो इसी का ऑफ जलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन कर रहा है? ये वाला। इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई कर रहा है? नंबर 2 वाला। कोई डाउट निखिल? बाकी कोई है जिसको ये ऑफ वाला लॉजिक नहीं समझ आया? एनीवन? माय फेवरेट क्वेश्चन, ये गैली फॉल्ट लाइट कब आती है? पता करो, फटाफट बताओ। So whenever any of the generator is supplying more than 100% of its output power. एग्जैक्टली, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। व्हेन एनी जनरेटर्स लोड इज मोर देन 100%, तो भाई इसका गैली से क्या लेना देना? सो अगर आप एक इंडिगो का जहाज देखोगे ना, उसमें जो जनरेटर है वो 21% या फिर 17% लोड पे काम करता है। वो लोड को 100% पहुंचना मतलब भाई बहुत बड़ी बात होती है। शॉर्ट सर्किट अगर कॉकपिट में हुआ तो सीबी पॉप आउट होगा सबसे पहले। तो एक्सेस करंट तो कॉकपिट में तो आएगा नहीं, बाकी बचा क्या? कोई गैली पे कोई इक्विपमेंट होगा या कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जिसमें आग वाग लगी होगी या अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, वायर जल रही होगी। इन सच केसेस आपका जनरेटर में करंट एक्सेस हो जाएगा, है ना। बिकॉज आपका करंट एक्सेस हो जाएगा, लिख लिया, नोट बना लिया। अब समझ आया कि गाली का क्या सिस्टम है। एसी इसेंशियल फीड का लास्ट मेरे को बता दो, कौन बताएगा? क्रिश विल टेल मी इस पूरे बटन का फंक्शन। alternate light will come on जब essential कौन से feed कलर में आएगा? second white करेक्ट, ये वाला वाइट में आएगा। ये आप दबाओगे तब आएगा या खुद से आएगा? manually मैनुअली आप दबाओगे तब आएगा। मैनुअली दबाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट करने के लिए यहाँ पे फॉल्ट लाइट दी है। right ये फॉल्ट लाइट कब आएगी? जब electrically supplied नहीं होगी
essential bus. कौन सी AC essential bus? So as you can see over here, यहाँ पे जो बड़ा वाला arrow है, मोटा वाला arrow है, this is the general flow of current. ठीक है? But let's say if you want to have an alternate flow of current through the AC bus bar 2, you have to press this button. Some aircrafts also have an auto function built into this. AC essential feed auto switch function. Auto switch function. ठीक है? ऐसे पता चलेगा कि किस में है किस में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा था कि ऑटो स्विच होता है और एक ऑप्शन था कि मैनुअल स्विच होता है। भाई ये तो वो MSN के हिसाब से, जो आपको MSN पढ़ना होता है उसके हिसाब से। मोस्टली आई डोंट थिंक आपके वाले MSN में स्विचिंग है। तो अगर ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन रहे तो हम मैनुअली सिलेक्ट करें ना। Yeah, I think so. You should do that. Okay. Any doubts so far? Last question, last topic for the day. Tomorrow we will do auto flight. Is electrics के indicators. Okay. ये generally ऐसे दिखता है नहीं. यहाँ पे मैंने it's a generated image which I have generated myself, and this particular image will show कि यार पूरे FCOM के पूरे आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको साथ में शो किया। ठीक है? एक जनरेटर की फॉल्ट लाइट, एक जनरेटर की कौन सी 3 चीज नापी जाती है? लोड, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी. लोड, वोल्टेज एंड frequency, right? The same thing goes for APU gen and the same thing goes for generator 2. There are two more sources of power जिसमें load is not checked. One is electrical power, external power, and is emergent. Emergent में सिर्फ और सिर्फ वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नल पावर में भी सिर्फ वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी है, लोड केसी में नहीं है। हालांकि इंजन ड्रिवन जनरेटर जहाँ पे भी आप अपना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हो, इन तीनों में लोड आ जाता है। एनी डाउट सो फार? इज दिस डन? इज दिस डन? इज दिस डन? एंड इज दिस डन? परफेक्ट। नेक्स्ट, ये जो आप बस बार्स देख रहे हो ये अभी ग्रीन में है। ये बस बार्स की राइटिंग एम्बर में कब होगी? जब ये बस बार सप्लाइड नहीं होंगे। ठीक है, फेयर इनफ, वेरी इजी। फिर ये हो गया हमारे पास IDG। ये IDG टेम्परेचर जो है ये ऑयल का टेम्परेचर, IDG के ऑयल का टेम्परेचर। नाउ माय क्वेश्चन इज, IDG का ऑयल कितना गर्म होने पर ये एम्बर होगा, या व्हेन विल द अलर्ट कम? 180. एफकॉम देखो, बताओ मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो IDG ओवरहीट कब होता है? 180 डिग्री सेल्सियस के बाद। एवरीवन फाउंड इट इन द एफकॉम? Was everyone able to find it in the FCOM? Very good. जब IDG हो जाता है डिस्कनेक्ट, तब कुछ आता है, यहाँ पे सिंबल आता है, ये सिंबल आता है। IDG ऑयल का अगर लो प्रेशर होगा तो ऐसे एम्बर में आएगा। So everything about the IDG which is the primary source is done. IDG then supplies to Gen 1, Gen 2. This is done. These two are also done. Okay. ये जो बसेस हैं इसमें जब पावर नहीं रहता एम्बर में रहते हैं, फिनिश, खलास, नथिंग एल्स। TR, transformer rectifiers, maybe again you have only volts and amperes. As you know that the entire system works on 28 volts direct current. यहाँ पर ये जो TR है इसकी मैक्सिमम रेटिंग कितनी है? 200। चैप्टर के पहले दिन पे पढ़ाया था, 200 एम्पियर की इसकी रेटिंग है, राइट? Now this is technically a DC source of power. So मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? वोल्ट एंड एम्पियर। This is also a DC source of power. मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? वोल्ट एंड एम्पियर। Batteries are also DC source of power, volts and ampere measure कर रहा हूँ। So again, all the same 4 DC sources, this, and even essential TR,
or all the same. Anything which is in the box is a source. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10. These are all sources of electricity. बाकी कंजम्पशन कहाँ पे हो रही है? डीसी बैड बस एसेंशियल, DC1, AC1, AC एसेंशियल शेड, AC बस 2, DC2, इन सब में कंजम्पशन हो रही है. अगर आपकी गैली शेड हुई है तो यहाँ पे गैली शेड का बटन है. हाँ वो लोग वेल एन देखो क्या लिखा है. अगर लोड 100% से ज़्यादा है एम्बर हो जाएगा. इन पे तो लोड शो ही नहीं होता. नेक्स्ट वोल्ट्स. इसमें से क्वेश्चन आता है. वोल्ट्स 120 से ज़्यादा, 110 से कम. सो टॉलरेंस कितनी है? 115 की तो रेटिंग है तुम्हारी जनरेटर्स की. 115 वोल्ट्स बाय 200 वोल्ट्स, इसकी तो रेटिंग है, पहले पेज पे है एफकॉम के. अगर +-5 से ऊपर नीचे गया, मतलब 120 और 110 से बियॉन्ड गया, एम्बर हो जाए. सेम गोज विथ फ्रीक्वेंसी. 410, 390, रेटेड इज हाउ मच? 400. सो +-10. अब जब आप एफकॉम खोलो, इसके कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स पढ़ो, यू विल सी दीज वैल्यूज अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइम्स. पेजेस गो थ्रू करो, यू विल सी दीज सेम वैल्यूज. सो इन सब के लिए, बी इट फॉर जनरेटर 1, एपीयू, जेन, इमरजेन एंड एक्सटर्नल पावर, सबके लिए ये सेम डेटा रेपिटेटिव है. रेफर टू एफकॉम. रेपिटेटिव लगा? यस और नो? सो डू यू थिंक इट इज हाँ भैया. रेपिटेटिव? हम्म. है ना? सेम ही चीज को 10 बार लिखा हुआ. सेम गोज फॉर बैटरीज एंड टीआर. यहाँ पर 28 उसका होना चाहिए. एम्बर कब होगा? 25 के नीचे, 31 के ऊपर. करंट का बता सुबल, करंट कितना है? सो द डिस्चार्ज करंट ऑफ द बैटरी, बैटरी डिस्चार्ज होना बुरा है. सो अगर बैटरी का डिस्चार्ज करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा जाएगा, देन इट्स बैड. ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर टीआर तो करंट सप्लाई कर रहा है, अगर वो 5 एम्पियर से कम हुआ तो एम्बर हो जाएगा, मतलब टीआर काम नहीं कर रहा. So this is the entire idea towards this entire page. Any doubts? It's a short and crisp note for the same. Any doubts? With this, we come to the end of the chapter. Next day onwards, we complete Autoflight.